नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? लॉकडाउन की तैयारी जोर से शुरू। तो आज एक एक्चुअली बहुत शुभ दिन है। आज रामनवमी में है। आज रामनवमी के हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं आप सभी को। जैसे प्रभु रामचंद्र ने वो सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, तो वैसे ही हम भी कोरोना से ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। ये मेरा मानना है, विश्वास है, और मुझे लगता है कि हम सभी के साथ से ये जरूर होगा। दूसरा चीज जो चल रहा है वो रमजान का होली पर्व चल रहा है, और इस ये भी एक शुभ काल है। तो इन दोनों चीजों से मुझे लगता है कि हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए। लेट अस नॉट बी वेरी पेसिमिस्टिक, लेट्स नॉट बी वेरी gloomy and just talking about gloom and doom the whole day, and let's be a little more positive, and let's look forward to a time when we will when this thing is going to get over, because every cloud comes with a silver lining, and after every dusk there is always dawn. So maybe this is just the darkest part of the night that we are seeing, after which we are definitely going to see the sun's bright rays. So today, actually, looking at both these festivals, and what comes to mind is basically food. Now, Indians, festivals and food are something that always go together. And when there is food, food does not mean that you're going to eat boiled vegetables, you're not going to eat pulses, you're not going to eat just dry food. You're going to eat nice, rich, oily, greasy food that is going to really fill your tummy when everything is happening well. When in fact in lockdown the Facebook was full of videos which showed people cooking various things from various parts of the world. There was just, people were so enthusiastic during the last lockdown. Every time I used to see my Facebook, there used to be somebody cooking some exotic pasta or some great dish from Korea and Japan and so on and so forth. So obviously food and India go together. Now, unfortunately, there is a downside to all this. And what is the downside? That if you stuff too much in, you're obviously going to have what we call as acidity. Now, what is acidity? Now, actually, this word is used very loosely, friends. I mean, you can acidity stands for a lot of things. Acidity can be just a little burning that can happen in the tummy. Acidity can stand for a lot of heartburn that can occur. Acidity stands for inability to swallow. Acidity sometimes also stands for indigestion or constipation. A lot of patients describe acidity like that I have just pain in my tummy and maybe thoda sa acid hai. So this is how patients describe it. Right now I'm getting a question which says that, after eating after the iftar party in the morning, I ate a lot of food, and I found myself to have vomiting, and I was feeling nauseated the whole day. Exactly, this is what happens. This is how it happens when you are fasting the whole day, and then suddenly when you break your fast, you tend to eat a lot of food in a very short time. You tend to sort of gulp down food. You're not chewing well, and often the food happens to be very rich because it's a festival. So it is going to be, there's going to be a lot of sweets, there is going to be a lot of fried stuff, and there's going to be a lot of heavy food that you're going to eat. And all this is obviously going to lead to the bloating, as the gentleman says. So now, because of this, a lot of times we just dismiss it off. We say that yes, this is just karma. We are just going to eat. If you're going to eat, you're going to obviously have this kind of symptoms. So let's not sort of ascribe too much to it. Let's just take a quick tablet or two, whatever Rantac और जो कोई tablet मिलता है वो लेंगे, और tablet लेके हम खुश हो जाएंगे. ठीक है, एक दिन तक रहेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा. Now there is something beyond this. Acidity सिर्फ यहाँ end नहीं होती. Now there is a certain group of people who overdo it, जो बार बार ये गलती करते हैं. कुछ भी हो, हफ्ते में 3 बार बाहर खाएंगे. आप अभी तो ऑफ कोर्स लॉकडाउन है, तो चलो लॉकडाउन में बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन टेक अवे तो ले सकते हैं, खाना तो मंगा सकते हैं. इफ यू कैन नॉट गो टू द माउंटेन हैज टू कम टू यू, राइट? तो वैसे हो रहा है कि लोग मंगा रहे हैं, घर में पका पका के बोर हो गए हैं, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, अच्छी सब्जी रोटी जो न्यूट्रिशियस होती है वो तो नहीं अच्छी लगती,
मंगा लो, तंदूरी मंगा लो, कुछ भजिया मंगा लो, कुछ पिज्जा मंगा लो। तो ये सब चलते रहता है और इसके वजह से दो चीजें होती है दोस्तों। इसके वजह से होता है कि आपका वेट बढ़ने लगता है, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ दैट it leads to chronic acidity. Now what happens is, as weight increases, as central obesity increases, it leads to something called as गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। अब ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। सिंपल चीजों में कहे तो जो खाना ऊपर आता है, जब हम लोग दबा के खाते हैं तो ऊपर खाना आता है, जो ऊपर खाना आता है उसको हम लोग कहते हैं कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। अभी जो रिफ्लक्स होता है, नीचे से ऊपर आता है, उसके वजह से क्या क्या होता है। तो ये लगने को बहुत सिंपल है, बाल्टी भर गई, पानी ओवरफ्लो हुआ तो हुआ, क्या फर्क पड़ता है, एक आध उल्टी हो गई, दारू बहुत पी ली, उसके साथ में चखना भी बहुत खा लिया तो दारू उल्टी कर दी। तो इतना सिंपल ये होता है क्या? नहीं दोस्तों, इतना सिंपल ये होता नहीं है। अगर ये बार बार होने लगा, रिमेंबर, जो पेट रहता है, जो स्टमक रहता है, जो जठर जिसको बोलते हैं, ये जठर की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा रहती है। उसकी एसिड पेलने की कैपेसिटी जो रहती है, आपका जो पीएच रहता है, आपने केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ा होगा कि अपने एसिड की, अपना एसिड और अल्कलाइन में पीएच नाम की चीज आती है जो मेजर करती है। वो पीएच स्टमक की ऑलमोस्ट 4.5 तक रहती है, उतना एसिड वो पेल सकता है। वैसे ऊपर वाले ने, वैसे नेचर ने बनाया है उस स्टमक को कि वो उतना एसिड पेल सके। लेकिन शरीर के दूसरे भाग जो रहते हैं, जैसे अपनी अन्न नलिका रहती है, जो अपना फूड पाइप रहता है, जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो ईसोफेगस इसके लिए बना नहीं है दोस्तों, उतना एसिड झेलने के लिए वो बना नहीं है। तो ये एसिड अगर पेट से, जठर से बार बार ऊपर आते रहे तो फिर उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज हो सकती है कि वो ईसोफेगस की जो अंदर की चमड़ी है वो जलने लगती है। और क्योंकि अगर बार बार कोई भी चीज अगर जलती है तो क्या होता है कि उसमें बदलाव आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक हाथ आपके स्किन में कोई बर्न आ गया हो तो वहां की चमड़ी थिक हो जाती है, कड़क हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वैसे ही जो आप सोचिए कि आपने जो एसिड बाथरूम के लिए यूज करते हैं, उसी पीएच का एसिड अगर आपके अंदर के चमड़ी को बार बार लगता हो तो उसकी क्या बेचारे की हालत हो जाएगी। तो उसी से वो पूरी की पूरी चमड़ी बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है और उसके सेल्स जो है वो हड़ताल कर देते हैं, वो एक प्रोटेस्ट पुकार देते हैं, वो एक स्ट्राइक पुकार देते हैं और उनमें एक बदलाव आ जाता है। वो माओवादी जैसे हो जाते हैं, वो रेबेल्स हो जाते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। और वो बदलाव क्या होता है कि उन सेल्स में धीरे 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 चेंजेस आ जाते हैं दोस्तों। और ये चेंजेस जो होते हैं उसमें कैंसर के चेंजेस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स कैंसर एकदम से नहीं होता, उसमें धीरे 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 कैंसर में बदलाव आते हैं। तो सर्वप्रथम जो होता है उसको कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। अब ये बैरेट्स इसोफेगस क्या होता है कि बैरेट्स इसोफेगस में जो चमड़ी रहती है, तो पहला टेंडेंसी रहता है कि भाई मेरे को माफ कर, मैं तेरे जैसा बन जाता हूँ, तू जो कुछ एसिड फेंकेगा मैं तेरे जैसा बनने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं वो एसिड मैं भी तेरे जैसा झेल सकूं। ऐसा वो अन्न नलिका अपने पेट को बोलता है। लेकिन ऐसे इजी तो है नहीं। आप सडनली एक देश से दूसरे देश गए तो आप वहां के तो इमीडिएटली हो नहीं जाते, एक नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस रहता है। तो वो हमेशा नॉर्मल वैसा चलता नहीं है। जो जो जिधर का है तो वो उधर ही पलता है। अगर आपने हिमालय की कोई चोटी से अगर कोई फूल लाया और आपको लगा कि बंबई की गर्मी में वो फूल वैसा ही उगने वाला है, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वैसे ही वो चमड़ी का चेंज जो रहता है वो काफी हानिकारक रहता है। वो ना जठर के जैसा हो जाता है, ना वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी रखता है। तो उस वो बदलाव को हम बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं। अगर ये बैरेट्स इसोफेगस वैसे के वैसे रहा तो क्या होता है? तो बैरेट्स इसोफेगस वैसे के वैसे रहा तो उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी एक क्वेश्चन आया है अभी, उसमें कहते हैं कि अगर मैंने क्वांटिटी जो आप खाते हैं खाने की,
उसके ऊपर ये डिपेंड करता है क्या, और आपके वजन के ऊपर, आपका वजन कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है क्या। तो क्वांटिटी पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, क्वालिटी पे डेफिनेटली डिपेंड करता है, और वजन के ऊपर भी 100% डिपेंड करता है। अगर किसी का बीएमआई ज्यादा है, जो अभी खास करके जो ऐसे लोग रहते हैं जो बार बार खाते हैं, तो उनका वजन भी ज्यादा रहता है, और क्योंकि वजन ज्यादा रहता है, पेट का अंदर के प्रेशर ज्यादा रहता है, तो रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और रिफ्लक्स जब बार बार होता है तो ये सब चेंजेस जो हम डिस्कस कर रहे थे वो होते हैं। अभी दूसरा क्या होता है, वो चेंजेस जब होते हैं तो उसमें धीरे धीरे धीरे, अगर ये प्रताड़ना, उसकी जो टॉर्चर है, प्रताड़ना है, वो चालू रही, तो उसमें कैंसर का बदलाव होता है, और ईसोफेजियल कैंसर जन्म लेता है। ईसोफेजियल कैंसर यानी फूड पाइप का कैंसर, कैंसर ऑफ द फूड पाइप। सो आप सोचिए, एक सिंपल चीज एसिडिटी, इसका अगर किसी ने बराबर से इस पे ध्यान नहीं दिया, टाइम में अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, तो उसमें क्या हो सकता है, तो इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। दूसरी चीजें क्या हो सकती है, जो स्टमक है, वो उसकी भी तो एक लिमिट है, बराबर कि नहीं, हर चीज की एक लिमिट है। जस्ट बिकॉज वो एसिड के लिए बना गया है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो जितना चाहिए उतना लेते रहे। तो उसमें भी एक, उसको भी एक रेस्टिंग टाइम चाहिए। तो आपने अगर वो रेस्टिंग टाइम अपने जठर को नहीं दिया, तो क्या हो सकता है, तो उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। जैसे अभी मुझे एक क्वेश्चन आया कि इस स्टमक कैंसर कॉज बाय एसिडिटी, तो स्टमक भी एक बहुत बहुत बड़ा एक वाइड ग्रुप है, जो स्टमक में, इंटेस्टाइन्स भी हम लोग स्टमक बोलते हैं, लिवर को भी हम लोग स्टमक बोलते हैं, फूड पाइप को भी हम लोग स्टमक बोलते हैं। लेकिन अभी इस डिस्कशन के लिए मैं सिर्फ एक नैरो डेफिनेशन लूंगा। जो जठर है, जो पेट है, जो उसको स्टमक, हम लोग जो मेडिकल टर्म्स में जिसको हम लोग स्टमक बोलते हैं, उसी को हम लोग बात करेंगे। तो स्टमक कैंसर होने की भी संभावना कभी कभी रहती है। उसमें भी रिपीटेड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या रिपीटेड एसिडिटी के वजह से थोड़े चेंजेस आते हैं। किसी किसी टाइम में उसमें कोई इन्फेक्शन रहता है, जो बाहर का खाना बहुत खाते हैं, स्ट्रीट साइड फूड, आजकल वो फैशन हो गया है कि स्ट्रीट फूड खाने का फैशन रहता है। अभी तो हालांकि बंद है, लेकिन जब भी कभी चालू होगा तो लोग वापस से शौक करेंगे। तो उसमें स्ट्रीट फूड खाने में कभी कभी पेट के अंदर एक इन्फेक्शन होता है। उसमें एक छोटा सा जंतु रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इंटरेस्टिंग नाम है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो एच पाइलोरी जो रहता है, वो पेट के अंदर, वो अपने जठर के चमड़ी के अंदर घुस के अपना घर बना लेता है। और वहां पे वो क्या करता है, वहां पे अपना आशियाना जो बना लेता है, उस आशियाने के वजह से वो वहां चेंजेस लाता है। क्योंकि वो कोई भी घर बोला तो वो कुछ पकाएगा, गैस लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो बैक्टीरिया भी करता है, अपना संसार बना लेता है वहां पे। और उसके वजह से आजू बाजू की जो एनवायरमेंट है वो खराब हो जाती है। यानी क्या खराब होता है, अपने स्टमक की, अपने जठर की जो ग्लूकोजा है, जो उसकी अंदर की चमड़ी है, वो खराब हो जाती है। और वो खराब होने के वजह से उसमें माल्टोमा नाम का कैंसर तैयार हो जाता है। माल्टोमा नाम का कैंसर तैयार हो जाता है। किसी किसी लोगों को पूरे पेट की जो चमड़ी है वो फ्लैट हो जाती है, और वो फ्लैट होने के वजह से भी कैंसर होता है। यानी आप एक चीज आपको ध्यान में आई होगी कि ये जो सब मैं बोल रहा हूं, वो कुछ, वो सब चीजें मैन मेड है। इसमें कुछ आया, नेचुरल इंटरवेंशन आया, कोई डिवाइन विल आई कि बाबा भगवान ने हमको पनिश किया, ऐसा आया? नहीं आया। उसमें ऐसा आया कि बाहर का कुछ तो मैंने एक्सीडेंट हुआ मेरा और उसके वजह से ऐसा हुआ, नहीं हुआ। देर इज नथिंग नेचुरल, दिस इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय अस। हम हमारे शरीर को कैसा ट्रीट करते हैं, डू वी रिस्पेक्ट आवर बॉडीज? हम समझते हैं क्या कि हमको
हमारे शरीर को उतना हम लोगों को उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ ध्यान रखना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आपके शरीर को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ये शरीर जो ऊपर वाले ने दिया है वो अपने मकसद के लिए दिया है कि उसकी आप पालना कर सके, उसका पालन इसलिए करे ताकि आप समाज के काम में आओ, ना कि समाज पे बोझ बन जाओ। तो इसीलिए उसका ध्यान रखना, उसकी उसकी सही तरीके से उसका पालन और पोषण करना बहुत जरूरी है। जब ये हम लोग अब्यूज करते हैं, जब शरीर को अब्यूज करते हैं, तो वो शरीर के अब्यूज में ये सब बीमारियां आ जाती हैं। तो कैंसर इज नॉट सम कर्स गिवन बाय सम एंग्री गॉड। कैंसर इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ बैड लक, it is also because of your own karma. And by karma, I don't mean luck, I mean what you eat and what you do. So, लोग जब एसिडिटी की और एक वजह होती है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। हाँ दोस्तों, स्मोकिंग के वजह से भी एसिडिटी बढ़ती है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है, लोगों को स्मोकिंग यानी लंग्स, यही चीज अपने को याद रहती है। लेकिन स्मोक, टोबैको स्मोक कैन कॉज फूड पाइप कैंसर, इट कैन कॉज स्टमक कैंसर, इट कैन कॉज पैंक्रियाटिक कैंसर ऑल्सो। तो बेसिकली ये सब चीजें साथ में हो सकती हैं। तो ये नहीं आप समझें कि क्योंकि मैं स्मोक करता हूं तो मुझे लंग कैंसर होगा, नहीं, इसोफेजियल कैंसर भी हो सकता है। एसिडिटी होती है और एसिडिटी के वजह से वो भी हो सकता है, इसोफेजियल कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब चीजें अपनी मैन मेड हैं। इट इज अ एडिक्शन विच कैन कॉज, सो अ कॉम्बिनेशन। इंडिया मैच जीत गया तो हम लोग बहुत खुश हो गए, जब 4-5 दोस्त आके बहुत धमाल किए, और वो धमाल में क्या हुआ कि बहुत खाए, तो दूसरा परसों के दिन ऑफिस की पार्टी हुई, उसके नेक्स्ट दिन और कुछ हुआ। तो ये सब चीजें साथ में मिलके आप जो अपने शरीर को, हम जो अपने शरीर को अब्यूज करते हैं, उसके वजह से ये चेंजेस आ जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस हैं। एसिडिटी इज समथिंग दैट इज अंडर योर कंट्रोल। अभी क्वेश्चन आया, हाँ अभी एक वैलिड क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं एनीवेज आने वाला था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये प्रिवेंट करने को? द फर्स्ट ऑब्वियस आंसर इज, ऑब्वियसली आपको आपका डाइट रेगुलेट करना चाहिए। इवन इफ यू बिंज, तो दैट बिंज शुड नॉट बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। once in a 6 months, once in a year, sometimes you let go, that is fine. But thrice a week, 4 times a week, is that justified? I don't think so. तो वो आपको नहीं करना चाहिए। First is regulate your diet, know when to stop. There is no rule against partying. Yes, you must have a good life. ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी जंगल में जाके साधु की तरह रहना है, नहीं। लेकिन आप जब पार्टी करते हो तो आप समझ लो कि आपके शरीर के लिमिटेशंस क्या है, और उस लिमिटेशन के हिसाब से आप आगे की स्टेप लो। दूसरा चीज, एक्सरसाइज रेगुलरली। जब भी आपका मसल टोन अच्छा रहता है, तो फिर आप उसके वजह से ये जो रिफ्लक्स है वो भी कम होता है। एक्सरसाइज हैज मल्टीपल बेनिफिट्स। ऑब्वियसली वन थिंग, द ऑब्वियस बेनिफिट्स आर, आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आपके मसल टोन अच्छा रहता है, आपका फील गुड फैक्टर रहता है। लेकिन मोर ऑल्सो ऑल द अदर थिंग्स दैट हैपन is that there is suppression of all negative hormones, और दूसरा चीज जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और उसके वजह से we boost our immune system whenever we lead a healthy lifestyle. This is the second thing that can do. So have a good diet, keep your weight under control. That is the way that you can prevent acid reflux disease. Okay, now if somebody has acid reflux disease, then they should definitely consult a doctor and take various steps in order to correct that. So the doctor will examine and tell you कि बाबा क्या क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल थिंग लाइक स्लीपिंग ऑन योर, ईटिंग 2 hours बिफोर गोइंग टू बेड। बहुत लोगों को आदत रहती है आजकल, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है तो लोगों का एक्चुअली आदतें और बिगड़ गई है, आप सब जानते ही हैं। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में पहले तो 9 to 5 जॉब था, अभी तो 24 hours है।
9 to 9 जॉब हो गया है, अभी 9 AM to 9 AM जॉब हो गया, क्योंकि आप तो घर पे ही हो, तो बॉस बोलता है कि काम करने में क्या जाता है, आपका तो घर में ही हो ना, तो काम कर लो। तो उससे लोगों की लाइफस्टाइल और खराब हो गई है। लेकिन यू शुड रेगुलेट दैट लाइफस्टाइल। जैसे सोने का टाइम आपका अगर 11 है या 10 है, तो उसके 2 घंटे पहले, जैसे पहले जमाने में कहते थे कि सनडाउन के पहले आपको खाना चाहिए, तो मे नॉट बी जस्ट बिफोर सनडाउन इफ योर लाइफस्टाइल डजंट अलाउ इट। इफ यू कैन डू इट, इट इज आइडियल, बट इफ यू कांट, देन एटलीस्ट 2 hours before going to bed, because that is where you will allow the stomach to get emptied before you sleep, because the moment you sleep, your reflux will increase. Secondly, sleep on your left side, especially people who have a lot of reflux. They can sleep on their left side, and that is how, there is an angulation that happens. That is the way the stomach and the esophagus are structured. So that will help reduce the reflux, and many other medications and other things that the doctor will advise you. Now, how does one know that this has now progressed to esophageal cancer? क्या 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 सिम्टम्स होते हैं सब? इंसिडेंटली जस्ट शेयर करना चाहता हूं कि दिस मंथ इज एक्चुअली द मंथ ऑफ द इसोफेजियल कैंसर। हाँ दोस्तों, कैंसर्स के लिए भी अभी मंथ्स है। आजकल आर्चीज ने वो बहुत बड़ा एक अच्छा ये बना दिया है, आर्चीज जैसे कंपनियों ने, आर्चीज नहीं, सॉरी, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट जनरली एक ये हुआ है कि हर चीज के लिए कोई तो डे या कोई तो मंथ रहता है। जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, बाकी 364 डेज तो हम लोग भूल जाते हैं, तो किसी एक दिन तो याद रखो। तो मे बी दैट इज द रीजन। सो दिस मंथ इज ईसोफेजियल कैंसर मंथ। ईसोफेजियल कैंसर मंथ में इसलिए हम लोगों ने ये भी औचित्य समझा कि हम लोग इसके बारे में बात करें। तो ईसोफेगस में क्या होता है कि खाना जो हम लोग खाते हैं वो निवाला अटक जाता है। दैट इज द फर्स्ट सिम्टम, कि इनिशियली इट स्टार्ट्स, बहुत ही सिंपल से ऐसे चीज लगती है कि खाते समय एखादा जो निवाला रहता है वो अटक जाता है। स्पेशली आप अगर एकदम रैपिडली खा रहे हो, बराबर से चबा नहीं रहे हो, और कोई हार्ड स्टफ खा रहे हो, तो वो अटक जाता है। धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है, यानी सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से लिक्विड, ऐसा वो उसकी एक राइजिंग कर्व रहती है कि जिसमें वो खाना खाने में दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। दूसरा चीज होता है कि कभी वो जो हार्ट बर्न रहता है वो बढ़ते जाता है, उसमें ज्यादा लगता है कि ज्यादा हार्ट बर्न हो रहा है। तीसरी चीज होती है कि कभी कभी किसी किसी को पेन होता है। Now, these are very early signs. हीमोग्लोबिन ड्रॉप होते जाता है, वीकनेस बढ़ते जाता है, वजन ड्रॉप हो जाता है, पैंट लूज होने लगती है, सडनली यू फील कि अरे क्या हो रहा है। खाना खाने में कभी कभी लगता है कि मे भी थोड़ा सा गला खराब हो, इसीलिए खाना खाने में दिक्कत हो। लेकिन ये सब चीजें अगर बढ़ते कमान में, अगर चढ़ते कमान में अगर होती गई, तो फिर अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है और डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अगर जब इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, तो डायग्नोसिस इसीलिए होती है कि जो हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं। अभी एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी एक दूरबीन का तपास रहता है कि जिससे हम लोग एक दूरबीन मुंह के अंदर डाल के उसकी एक बायोप्सी, यानी छोटा सा टुकड़ा निकाल के, सैंपल निकाल के उसको भेजते हैं। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये ट्यूमर कहाँ है, अन्न नली के कौन से भाग में ये ट्यूमर है, ऊपर है, बीच में है, नीचे है। Because the esophagus is a long tube, it's almost about 32 to 35 centimeters long. तो ये पहले 10 सेंटीमीटर में है, बीच वाले 10 सेंटीमीटर में है, नीचे के 10 सेंटीमीटर में है। ये देखना बहुत जरूरी रहता है। दूसरा चीज अपने को पता चलता है कि कौन से टाइप का कैंसर है। अगर ये कैंसर है, तो क्या ये कैंसर के पहले की स्टेज है, जैसे मैंने आपको बैरेट्स के बारे में कहा, क्या ये कैंसर के बाद की स्टेज है, या ये एग्रेसिव कैंसर है। ये चीजें अपने को ये स्कोपी और सीटी स्कैन से पता चलती है। इसके आगे उसकी ट्रीटमेंट होती है। अभी ट्रीटमेंट में उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में वो ट्यूमर और वो फूड पाइप को निकाल के हम लोग जठर की एक ट्यूब बना के उसको पुनः जोड़ देते हैं। आजकल ये सर्जरी रोबोटिक्स से, यानी दूरबीन से या रोबोटिक सर्जरी से की जाती है, जिससे उसमें रिकवरी के चांसेस काफी अच्छे हो गए हैं। उसकी मोर्टालिटी, पहले जमाने में ये ऑपरेशन बहुत
सीरियस हुआ करता था और ऑपरेशन के दौरान बहुत लोगों की जान भी जाती थी, क्योंकि ऑपरेशन ही वैसा था, क्योंकि आजू बाजू में सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो तभी एनेस्थीसिया भी के टेक्निक्स भी इवॉल्व नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी उतनी उपलब्ध नहीं थी, तो इसीलिए उसकी मोर्टेलिटी भी ज्यादा थी। अभी ये सब चीजें बदल गई हैं, रोबोटिक सर्जरी जैसे नए उपकरण आ गए हैं, थोरैकोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से सर्जरी की जा सकती है, तो उसके वजह से पेशेंट की रिकवरी जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। और आजकल मोर्टेलिटी की जो रेट है वो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर हो चुकी है ये सर्जरी में। इसके बाद में कल किसी किसी को रेडिएशन यानी एक जो रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, तो रेडिएशन या लाइट की ट्रीटमेंट जिसे आम शब्दों में कहा जाता है वो भी दिया जाता है। कीमोथेरेपी यानी इंजेक्शन की ट्रीटमेंट भी किसी किसी पेशेंट को दी जाती है। इसकी सक्सेस रेट क्या है, ये बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि इसमें सक्सेस रेट क्या है। तो इसोफेजियल कैंसर में जैसे कोई भी कैंसर हो, इसमें जल्दी का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। अगर ये फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस हुआ तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन 10 में से 8 लोग पूरी तरह से यानी 80% पीपल कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड। लेकिन अगर ये लेट डायग्नोस होते गया, अगर सेकेंड स्टेज में गया तो रफली अराउंड 60%, अगर थर्ड में 4 या 5 लोग ही 10 में से ठीक होते हैं और फोर्थ स्टेज में कोई भी नहीं बच पाता। तो कोई भी ऐसा सिम्टम हो तो उसकी जांच करा लेना। अगर खाना खाने में दिक्कत है, बार बार एसिडिटी जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसकी जरूर जांच कर लेना। एक क्वेश्चन आया है कि ये रोबोटिक सर्जरी इसोफेगस में कैसे की जाती है। तो बेसिकली रोबोटिक सर्जरी जो रहती है वो एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी यानी ऐसा नहीं है कि रोबो ऑपरेशन कर रहा है। रोबोटिक सर्जरी इज अ स्लेव एंड मास्टर सिस्टम, यानी सर्जन सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन उसकी जैसे एक हाथ कोई भी मशीन हो, जैसे हम कैलकुलेटर, क्या हम 2+2 4 नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अपने को 2⁻10 + 2⁻20 अगर ऐसा कुछ करना हो तो फिर अपने को कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। तो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में अगर अपने को कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी अगर उपलब्ध हो तो उसके सक्सेस के चांसेस और बेहतर होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं कर सकते, बट अगर वो होते हैं तो वो काम और आसान होता है। तो रोबोटिक सर्जरी इज नॉट समथिंग दैट इज डन बाय रोबोट्स, it is done by the surgeon with the help of an highly advanced technology called which is now called the robo, which is basically a slave and master system. वो अपने दिमाग से रोबो कुछ नहीं करता, सर्जन ही उसको कंट्रोल करता है। तो मैं कह रहा था कि सिम्टम्स क्या हो। तो सिम्टम्स बेसिकली अगर वो डिस्फेजिया जिसको हम लोग कहते हैं, खाना खाने में दिक्कत हो या पेन हो या बार बार एसिडिटी हो, तो आई विल अगेन अपील टू ऑल ऑफ यू कि बाबा अगर किसी को ऐसा हो तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज अ स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ। ये जो कहावत है इंग्लिश में, तो वो बहुत सही है। और सही मायने में अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम लोग ये बहुत खतरनाक बीमारी से भी हम हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये आप टेक होम मैसेज रखिए। तो डोंट डिसमिस एसिडिटी एज समथिंग विच इज नॉर्मल। अगर ये रिपीटेडली हो रही है तो उसकी जांच करवाइए। एंड इन द फर्स्ट प्लेस, लेट अस नॉट गेट इनटू अ प्रॉब्लम बाय अवॉइडिंग इट टू हैपन। यानी हम लोग अगर हम हमारा डाइट कंट्रोल करें, हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो आई एम श्योर ये प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड लेट्स ऑल प्रे ऑन दिस ऑस्पिशियस डे कि ये जो पैंडेमिक आज दुनिया में चल रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर कोई क्वेश्चंस हो, अगर आपको कोई सवाल पूछने हो, तो you can contact us on our website www.anilcancerclinic.com, and we will be happy to respond and happy to answer your questions. Thank you.